أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وآل بيت أنبياء المرسلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. یہ جو آج کا میں اس موضوع سے اس آیت نمبر 1 جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے اسی کا پہلا ایک شروع کا حصہ تلاوت کیا. اب اس میں جو ہے اس کا جو ترجمہ ہے اس کے لحاظ سے میرا موضوع آج جو ہے تو بتانا ہے کہ اتحاد کیسا ہو اور کن درمیان میں ہو. تو سب سے پہلے اسلام نے اور جو قرآن نے جو پیش کیا ہے سورہ نساء کی پہلی آیت میں، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اس نے اس کا جوڑا پھر اس نے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دی. اب یہ جو آیت ہے اس میں اتحاد کا پہلا جو ہے تو قرآن یہ بتا دے رہا ہے کہ یہ جتنی دنیا میں انسان ہیں وہ ایک جوڑے سے خلق ہوئے. اس کا مطلب یہ یہاں بتا دیا اللہ نے کہ ایک دوسرے کا بھائی، یعنی اسلام کا پہلا میسج بردرہڈ، یہاں پہ یعنی برادری کا میسج ہے، برابری کا میسج نہیں. برابری کے میسج میں اور برادری کے میسج میں بہت بڑا فرق ہے. جیسا کمیونسٹ برابری کی سوچتے، برابری کے میسج میں دشمنیاں پیدا تھی، برادری کے میسج میں محبت پیدا ہوئی. اسلام نے سب سے پہلا میسج جو دیا وہ انسانی برادری کی باہم بھائی چارگی کا، یعنی جتنے انسان ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اب وہ کہیں بسے، کہیں گئے، کہیں قومیں بنی، کہیں، مگر یہ جو ہے انسان کی سب سے خاص خوبی یہ ہے وہ انسان جو ہے ایک دوسرے کا بھائی ہے، چاہے وہ لندن میں پیدا ہو رہا ہوگا، چاہے وہ افریقہ میں پیدا ہو رہا ہوگا، چاہے انڈیا میں پیدا ہو رہا. اگر اس کو اس نظریے سے دیکھا جائے تو سارے انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ہر جگہ اس لیے بولا کہ اللہ نے ہادی بھیجا، ہر جگہ جو تو اپنے میسنجر بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ سے ڈرائے. ابھی آگے اسی میں یہ ہے کہ بھئی تم اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہارے کو لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، ہاں، جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس کے بعد اس کا جوڑا پیدا کیا اور وہی جوڑے سے جو تو پوری اولاد ہوئی. اور یعنی اپنے کو یہاں پر یہ دیکھے بعد یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارے اسلام نے کبھی بھی انسان سے انسان کی نفرت نہیں بلکہ انسان سے انسان کی محبت کا جو تو پہلا درس دیا ہے. پہلا درس یہ ہے کہ بھئی انسان سے انسان ایز اے بھائی کے محبت کرے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے بھئی یہ ہم انسانوں میں ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں. یہ تو اس کے لیے ہم جب دیکھتے ہیں قرآن میں اور کیا میسج ہے، تو قرآن میں سورہ قصص کی 5ویں آیت ہے. آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ سورہ قصص میں کیا کہا گیا. سورہ قصص کی جو 5ویں آیت ہے اس میں یہی اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ جو لوگ زمین پر انسانوں کے ہاتھوں کمزور کر دیے گئے ہیں، اللہ چاہتا ہے ان پر احسان کرے اور ان کو زمین کا وارث اور امام بنائے. یہ آیت خود بتاتی ہے کہ اللہ کی مہربانی، اللہ کی جو تو ساری مہربانیاں ان انسانوں پہ ہیں جو کمزور کر دی، یعنی مستضعفین. جب مستضعفین کے اوپر ہے تو ہمارا رشتہ ہے انسانوں میں سب سے زیادہ پہلے آ گیا ہے آپریسڈ پیپل کے، یعنی ہم کسی بھی مذہب کا آپریسڈ ہوں گا تو اس کی طرف ہماری محبت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی کو جو ہے تو
इमाम, पेशवा और रहबर बनाना चाहता है और जमीन का वारिस। ये सब बातें किसके लिए? जो इंसानों के हाथों में। तो इंसानों में दो तबके हो गए, एक ऑपरेसर और एक ऑपरेस्ट। अब हमको बहैसियत एक इंसान और अपने भाई, किस भाई की मदद करें? जो ऑपरेटर। यहाँ अब इत्तेहाद में जो तो हमको एक दूसरा रिश्ता वो करना है कि हमको जो जालिम है वो हमारे इत्तेहाद में नहीं आएंगे, वो जालिम को हम जो है तो अलहदी होगी उससे। अब हमारा सारे तवज्जो का मरकज बनेगा कौन? कमजोर, हाँ, मुस्तज़अफ़ीन। अब उसके बाद हम आगे और जाते तो देखेंगे कि भाई अब हमारे पास जो है तो अल्लाह ताला ने बोला कि भाई अल्लाह वाहिद है, हाँ। अब उसकी पैरवी करो, उसकी इबादत करो, उसके जो मैसेंजर्स हैं उन पर ईमान लाओ। अब हुआ ये कि भाई जब मैसेंजर्स आए, उन्होंने तो सारे इंसान से मुखातिब हुए, चाहे वो काफिर हों, चाहे मुशरिक हों, चाहे कोई हो, मगर कुछ लोग लाए, कुछ लोग नहीं लाए। मगर जब कार्य रिसालत का अल्लाह ताला ने सूरह हदीद में बताया कि भाई हमने रसूलों को भेजा वाज़े निशानियों के साथ, और उसके साथ जो है तो उनके साथ मीज़ान दिया, हाँ, वाज़े निशानी, किताब और मीज़ान। ये तीन बातों के बाद अल्लाह ताला ताकि लोगों में इंसाफ कायम कर सके। अब रिसालत, जब कार्य रिसालत में ये पहली बात ये होगी कि सारे इंसान भाई। दूसरी बात ये है कि सारे कमजोरों की तरफ जो तो आपकी मुतवज्जो होना चाहिए, चाहे वो किसी के हाथों से कमजोर हो जाए। तीसरी बात यह है कि जब कार्य रिसालत का एक काम ये भी है कि सारे इंसान, फिर उनका अकीदा कुछ हो, उनका मजहब कुछ हो, उनसे जो है तो इंसाफ देना है। ये तीन बातों को लेकर जो तो इस्लाम आगे बढ़ा है कि पहले तो सारे इंसान भाई हैं, उनमें जो है तो मुस्तज़अफ़ीन है, उनसे मोहब्बत करना है, और मुस्तकबरीन के चुंगल से उनको आपको छुड़ाना पड़ेगा। जैसा फिरौन के हाथों बनी इसराइल थे, तो हजरत मूसा ने क्या किया? बनी इसराइल की क़यादत की और बनी इसराइल को फिरौन के चुंगल से निकाला। और जब आपके हाथ में हुकूमत आ जाए और इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए तो सारे लोगों में इंसाफ देना। अब रहा ये कि काफिर हैं लोग, अल्लाह को नहीं मानते, उनके साथ हम कैसा? अल्लाह ताला तो काफिरों के बारे में बोला कि जान पाओ, उनको कत्ल कर दो और ये कर दो। ये चीजें जब पढ़ते हैं तो लोग समझते हैं कि भाई हो उन्हें कुफ्र किया, कत्ल करो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। काफिरों की भी तीन किस्म है। पहली किस्म काफिरों की वो है जो जन्नो गुमान की वजह से काफिर है, हाँ, बस उनका है कि हम जो है तो जो है वो सही हैं। और दूसरे काफिर ये है कि वो उनको कुछ दूसरे के मजहब से लेना देना, वो उसको भी सही समझते, अपने को भी सही। तीसरे काफिर वो हैं कि वो आपको सही समझते मगर आप सही होने की वजह से आपसे दुश्मनी, यानी वो अल्लाह है, अल्लाह का रसूल ये मान रहे, ये लोग भी सच्चे, इसलिए अल्लाह और रसूल की दुश्मनी में से आपसे दुश्मन होते। तो ऐसे काफिर के लिए इस्लाम में जो है तो कोई गुंजाइश नहीं है। इन्हीं के लिए जो है तो इनसे आपको जिहाद करना है, इनसे लड़ना है, करना है। वो भी किसके? वही कार्य रिसालत ही किस्सा बनेगा जब रसूल का ही कोई नायब या रसूल खुद मौजूद हो, तो उनसे आप अकेले इनफरादी तौर से इनसे टक्कर लेना, या अपने घर के बाजू छे वो अल्लाह का दुश्मन है मैं उसको मार डालूंगा, नहीं। जब तक कि आपका खायद उसके बारे में कुछ ना बोले, अल्लाह का दुश्मन और रसूल का दुश्मन भी हो तो उसको खायद के जरिए चपने, और वो खायद जो है तो रसूल होना या रसूल का हकीकी जानशीन हो, उसके जरिए अगर आपको हुक्म मिला तो ये कर सकते। ये तीन बातों को देखने के बाद हम इत्तेहाद का सोच सकते। अब ये इत्तेहाद बढ़ने के बाद अब हमारे पास क्या होता है मसला कि इस्लामी इत्तेहाद, मुसलमानों का इत्तेहाद। अब ये मुसलमानों में आपसी मसलक की इत्तेहाद, इसमें यहाँ कर हर मसलक वाला बोलता कि भाई मुसलमानों में इत्तेहाद होना चाहिए, मुसलमानों में इत्तेहाद होना चाहिए। और उसके बाद ये चीज़ जब हम प्रैक्टिकली देखते तो वो सिर्फ उनकी ज़बान की नोक तक रहती। हकीकत में वो ये कहते हैं कि भाई हमारा मसलक इतना सच्चा है कि सारे जहन्नमी, ये जहन्नमी, वो जहन्नमी, वो जहन्नमी, वो जहन्नमी। और आजकल तो वहाबिज़म ऐसा निकला कि वो सारों को काफिर
हर मसलक वाला काफिर और वही जो है तो मुसलमान है। उससे क्या हो रहा है, जब आप एक दूसरे के मसलक को काफिर बोलेंगे तो उससे ऐसी हो रहा है। उसकी एक मिसाल है कि एक बाप जो है तो अपने बच्चों को बोलता है कि भाई मेरा पैजामा जरा बड़ा होगा, इसका एक बारिश काट। वो 6 बच्चे रहते उसको, हर एक बच्चे को बोलता कि भाई मेरा पैजामा जरा बड़ा हो गया, एक बारिश कम हो। हर बच्चा जा रहा है, एक एक बारिश काट रहा है, एक एक बारिश काट रहा है, पैजामा जाके चड्डी बनी। इस तरीके से उम्मत अगर ऐसा करते रहेगी तो उम्मत भी जो है तो 125 करोड़ के 5 करोड़ भी नहीं रह सकेगी। ये जो हमारे पास का एक गैर इस्लामी नजरिया आ गया कि भाई इस, हालांकि हाँ इस्लाम तो इंसानियत से लेके जो आगे बढ़ते जा रहा है। काफिरों के अंदर भी उसमें कुछ सूरह मुम्तहना में है कि भाई अगर वो तुमसे एहसान कर, तुम अच्छा सलूक करें, अगर वो अल्लाह रसूल के दुश्मन ना हो, तुमसे अच्छा सलूक करें, तो तुमको भी उन पर एहसान करने में अल्लाह मना नहीं करता। जब इतना लिबरल इस्लाम है, आप अपने ही मसलकों में आपस में तकसीम कर रहे हैं, इसको काट डालो, उसको काट डालो, उसको काट डालो, और उसके बाद जो है तो इत्तेहाद की बात करते हैं। इत्तेहाद इनकी जबानों की नोक पर है, इनके अंदर इत्तेहाद का कुछ नहीं। वो शिया को मार डालो, आज जो है तो IS क्या कर रहा है, शिया को मार डालो, सुन्नी को मार डालो, किसको मार डालो, एजदी लोग हैं उनको मार डालो, कुर्द को मार डालो, तुम रहोगे कहाँ, किसको तुम इस्लाम समझ रहे हो। इस तरीके से जो है तो, और अफसोसनाक बात यह है कि उन पर जो लेबल लगा दिया गया है कि ये सुन्नी अस्करियत, ये सुन्नी वगैरह कुछ नहीं, ये इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं। सबको पहचानना चाहिए कि ऐसी ताकत के बारे में हम क्या सोचें और क्या करें, और इत्तेहाद के लिए हम कहाँ से शुरू। इंसानियत से लेकर इत्तेहाद आपकी होगी, पहले इंसानियत है कि नहीं उसमें, उसके बाद इस्लाम है कि नहीं, उसके बाद ईमान है कि नहीं, उसके बाद तक़वा है कि नहीं। एक इंसान अपने आप को बड़ा परहेजगार और वो इंसानियत के दायरे में बाहर है तो उसमें तक़वा उसका कुछ काम का नहीं। एक इंसान है बड़ा ईमान बता रहा है मगर उन्हें जो तो इंसानियत से दूर है, वो भी उसका ईमान काम का नहीं, वो इस्लाम भी काम का नहीं, जिसे वो तो अपने नाम इस्लाम का ले रहा है और दूसरों को खतरा कर रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इस बारे में सब गौर और फिक्र करें और इत्तेहाद का एक मैसेज, कॉन्क्रीट मैसेज देने की कोशिश करें। यही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है तमाम मुस्लिम भाइयों से और सारे इंसानियत ताल्लुक़ रखने वाले इंसानों से कि इंसानियत एक बेहतरीन चीज़ है जो हैवानियत से बहुत दूर है। और हमको जब हैवानियत के सांचे में इंसान पड़ रहा है, हैवानियत जो हम में है उससे जो तो हमारे जिस्म के बढ़ने करने खाने पीने वगैरह की ज़रूरियात हमारे, सिर्फ हमारी इंसानियत उसके गोद में पड़ रही है, जो जिस्मानी वो है इंसानियत हमारे जिस्म के अंदर पड़ रही है। उस इंसानियत को इस्लाम के ज़रिए ताकतवर बनाने की कोशिश करें मुसलमान, और उससे सारे इंसानों को भला हो। तो यही कार्य रिसालत में हम मदद करेंगे और अल्लाह ताला आपसे अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।